Previously on Life After Lockdown. Alex just miscarried his baby. My dude, have you been this bitch? No. Alex, she's pregnant? Hell no. Yes, I've had sex with Alex. I do feel like I need to see Alex face to face. Is that baby mine? Like, tell me. I'm gonna do a big wedding. How much do you think we're gonna spend? $60,000? Not to be like a bitch or anything, but I had a jail wedding. I'm not ready to spend money on a wedding when you're not ready to call your family. Mike and I were gonna have another wedding. We're probably gonna be in New York in a few days. You can come meet. We can look at some places. I'll see what my schedule's like. Legally, you cannot even be drinking. I do not want to be in the car with you. I don't want to be with you because you treat me like I'm a piece of. Who are you texting right now? Now that I've lived and know who you are, I do not want to marry you. Until me and you can build co-parenting stability, it can't be anybody else involved, Troy. You gotta hurry to get home. I want to come. Let me handle my family. Troy wanted to see baby Troy. I don't want Troy around that girl. I'm trying to memorialize my father. I just want my daughter to just be a part of it. I'm begging you. All right. Will you come out here and come be with me while I put my father to rest today? I don't even know what I'm walking into. I have a criminal case that I'm dealing with. Right now, I'm fighting a charge, dealing with a dispute with a client of my tax business. Keith's circumstance have a bigger concern. Will it affect getting custody of his son since he's been in prison? Absolutely. What's up, baby boy? Now that I'm free, getting custody of Damari is my #1 priority. We can't catch a damn break, Tish. Oh, I'm in a bad situation. Do you deny these allegations that Joella is placing on you? They really trying to press charges on Kiana. Kiana allegedly flattened my tires. The money for your tires. You gonna make this disappear or what? I'm not dropping no charges. We still. Why would she be saying all that? Are you? Hell no. There's a criminal charge filed against you, and you do actually have an active warrant for your arrest. I can get an investigator to go out there and meet with her. What's this? The night my tires got flat, she was leaving the house. So what you trying to say? I put your tires on flat? Somebody cutting them up. You tripping? Accusing me? You trying to send me back to prison and let my kids get to be taken away again? I was taking care of them. They was good. You the problem, not me. Oh, my God. I'm very shocked at Joella saying that I had something to do with her tires being flattened. It ain't got nothing to do with me. It looks suspicious on your part. Some people, they take every opportunity to make you miserable. That's what makes them happy. And they ain't do about it. But just deal with them. But once you deal with them, you'll find that those people shrink and get out your way. Until I figure out what's going on, I'm not dropping no charges. I'm not doing nothing extra. Whatever. You acting clueless. She acting clueless. I'm acting clueless. I am clueless. Hey, up. I gotta go to work. I gotta go to work. I'm not trying to hear none of that. Come on, y'all. Stupid ass. I think Joella's lying. Come on. I feel like my baby mama is trying to get me to go back to prison. If you can't have me, nobody will at this point. I just want all this to be behind you. It's crazy. Oh, thank you so much. You're welcome. Be safe. Will do. I'll watch you to the door. Alrighty. What happened? I am trying to trust Demadre. Your mama is miserable as I swear she wants to be me so bad. A Class B misdemeanor or criminal mischief. I need support, mentally and physically. Too big. You making me like I'm the problem or y'all's problem, and I'm not. I ain't had these kind of issues up until he got out, so like it's just weird having to deal with all the extra stuff when I was literally at peace trying to just build a new life for me and the boys. So is he pulling me over? Is he? I don't know. And he's been behind me this whole time. Stupid.
Good afternoon, Mom. With the police department. Yeah, because we were just... Yeah. Okay. Alrighty. Just hang tight for me. I'll be right back. I'm scared now. Yeah, I don't know what they're gonna do. I don't got time to be going to jail. Really been kind of up, you know, like I gotta find out from my dad that Alex is pregnant. I'm not gonna tell Brooke I'm going to see Alex. If she even heard that she was pregnant, she would lose. Damn, man. I don't even know what to say. I ain't finna. Hell no. It's crazy. I've had sex with Alex, but like months ago. Hey. Man, hold on, let me tell you. I cheated on Brooke because I was unhappy. There's been conflict since day one. When it comes to me and Alex, we've always had a different kind of connection. I mean, it's not something I'm proud of, but it is what it is. What's up, Mama? Nothing. Can I help you? Damn, why you say it like that? What you need? Why you here? You know I'm here. No, I don't. So you're not pregnant? I am. You don't even look pregnant. I am. So why am I just not hearing about this? What's that got to do with you? We had messed around, yes, but you couldn't get together with Brooks, so settled on what you said you wanted. Unfortunately, I ended up with a beautiful blessing on the way. I mean, I got the pictures inside if you want me to go get them. Yeah, let me see them. I'll be back. I didn't tell JK about being pregnant because when he knew I was pregnant and we had went through a miscarriage, he just left me to deal with it by myself. And so when it came to this time, I was like, well, why tell him? Because at the end of the day, you're not going to be there. What this is? It's the sonogram from when I found out. The baby, the measurements. This is 11/22, the day that I found out. So how far along are you here? 7 weeks. On this day here? Yes. 35, okay. So that would put it in October. So what you mean? We was together in October. I mean, we was dealing with each other. You know, right now I can't even lie. Like my headspace is kind of, I'm just like off kilter right now. You know, I'm like, I could potentially be having a child with this woman. Like, so if I had to ask you, like one time, like, just be blunt, honest with me, just please, like, what is the chance of this baby being mine? Like, is it mine? He was talking to so many women. You don't even know how to work on yourself. There's no love there. That was an easy target. His karma's coming, and it's not going to be good. I understand that Troy's going through a lot right now, but I have things that we need to talk about. I have to tell you something. Just like, damn, Have y'all had that conversation yet? I worry about if Keith would wait for me if I was to be incarcerated. It's my attorney, okay? When it all gets wild, I dial ya. When the drama hits like a boom, use a man like a kitty cat cut ya. Gotta watch when I'm next to you. Buffalo, here we come. Like, what are we doing? He didn't really give us a lot of information. I have no idea what's going on. I'm hoping that, everything is okay, but I don't know who's gonna be there. I feel like all your problems are trying to jump you right now. I'm glad you're here because I feel like oftentimes I'm like
going through this by myself. Like, I don't have anybody on my side to support me. And I think, like, especially with how I'm feeling mentally and, like, all of the things that have transpired over the last couple of days, like, it can be very draining. If you want, we could just whoop some ass. Troy is just wanting me to drop everything and just rush out to Buffalo for a memorial for his dad that I did not know about. I know his family is going to be there, but as far as who exactly is going to be there, I'm really unsure. I have a lot of things that we need to talk about. I really just don't even know how to feel right now. Have a good day at school, baby. All right. I'm gonna make us me and you matching necklaces. You're gonna have your granddad ashes on them, so he always with us. I'll always keep you protected. You ready, baby? I was able to get in contact with Yana. We was able to come to a common ground as to a location that we would meet for our daughter. Everything is perfectly fine as of now. I like when you come visit me. I love coming to visit you, baby. Come on, baby. I love you. I came down here to say my goodbyes the best way I know how to your granddad, which is my father. Oh my goodness, we made it. Hi, babe. Hi, Troy. Hi, Troy, do you mind if I borrow your dad really quickly? Yes. Okay, let's talk. I have to tell you something. This secret is really starting to consume me. Centerpieces, DJ, band, photographer. You gotta tip people too. We can't do it. I would pay for my parts. What? You're doing too much right now. Pay for the dinner. It feels like it's not for real. Right now, I'm kind of just on my toes. I'm not this other woman. I am the woman. What if? I'm not playing games with neither one of these. This is our first trip, our first vacation kind of trip. But we're still gonna go look at some venues and eat some good food. She's gonna meet my Indian side of the family. The Guyanese is going to be lit, my friends. I don't think you understand the level of excitement that I'm experiencing. I'm very excited to be in New York with my wife. I miss the kids anytime I'm not around them. But the last time Justine and I had a date was when I first came home. So we do need to do some adult I don't know what he is talking about right now with all that. But yeah, I feel like it's a great opportunity for us to kind of regroup and get back on the same page. For sure. Oh, well, this is fun. Someone took the cameras down. I'm gonna call her right now. Hello? Ma, the cameras are down again. I don't know why they down. And what's going on? Everything's good? Fine. Come on. Look at daddy. Maddie! Hi, Princess! Hi, princess girl. Is Million still sleeping? Let me see. Millie boy. Oh, my Millie boy. I'll be okay. I will survive. Oh, you look so pretty. Thank you. Do I look like I just had a baby? No. You don't need anyone's approval. It's not about approval. I'm a little nervous. I invited my mom to come and meet us while we're in New York. All right, we gotta get ready now. Yep. Okay, Joe. I'm gonna text my mom, tell her to come down. What girl wouldn't want their mom at their wedding, right? If I double squeeze your hand while we're out, that means I'm nervous. You do that all day, though. How am I gonna know? You gotta come up with another... scared. It's just me. Shay. I'm here. Hello. How's it going? It's going. Oh my God. Hello. Don't you look cute? Thank What's you. going thank on? you, How thank are you. ya? I'm good. My feet are killing me.
I got my wedding planning book. You got to stop by figuring out how many people, because your food is going to be based around how many people. You think I should do a buffet? No, that's tacky. I feel like this may be one of those few times where we agree on so many things. It's a little intimidating, Sherry, because I know your wedding was like 100 G's. So I felt like your mom's gonna go to the place and be like, hold up, man. Yeah, we gotta rearrange this. We gotta do this. We need this. We need doves. I had doves. See? I was just gonna say, I don't know doves. My mom's wedding, she drove up in like a 1920-something Bentley, ice sculptures, multiple cakes. It was beautiful. You know, That is insane. She spent that much money, yo. my mom paid for her own wedding. We were looking at this because they have like a budget type breakdown, and they only have the dress at $3,000, but I changed the $3,000 to $8,000. I'm not gonna skimp on the dress. I wouldn't either. There you go. Justine and I have already had a wedding. We got married in prison. We're gonna have a big wedding and we're gonna do it the right way because I feel like I owe it to her. You have to think of music. It would be nice to have a harp. But there's something I haven't told her about what's really going on with our finances. New York better be ready for me. All right, Zsa Zsa, let's go. We're one big blended family. Kira, Keith, me, and Naraya, my oldest baby. He moved his big head out the way. We got Mari. Let me see those dimples, Mari. I love you. Hey, yo. I can't touch your dad. That's my baby. That's my daddy, too. Mario? Daddy with an eye. What's up with the Cool G? Yeah, hell yeah, Mari doing good, man. He been going to school, doing what he do. Mari has been living with me and the girls for a couple of days now. Basically, I end up getting supervision of him. I don't have full custody. I'm still taking them obstacles to be able to get him. But Damari, he fell right in place as soon as he came. Rock, paper, scissors, shoot. Okay, go. We're not gonna fall for your trick anymore. Overall, yeah, they definitely bonding. They accepting each other, you know what I'm saying? We having to get on them a little bit, you know, just showing them the things of life, as far as chores and whatnot, stuff like that. I'll definitely, I know the wife, she got to go take care of some business and whatnot, so. Bad luck. Hey, Siri, call attorney. The call has been forwarded to voicemail. Oh, God. So annoying. Let's cook. Hey, Tish. Keith! Ugh. Boys are so gross. It's terrifying. It's gross even thinking about it. Ugh. I'm about to throw up. You just changed for the worst. That's not my fault. You're not it, sweetie. I can't tell if you're being serious or not. Kiss my ass. Oh, I'm finna kill him. I'm finna choke the piss out of him. I feel like I don't even know what I'm doing right now in my life. I want you. Like, figure it out. I apologize for all of the I took you through. Oh, goodness. Now that I've lived and know who you are, I do not want to marry you. What did you think was going to happen? You think we're going to make it? No. That's what you portrayed. Yeah, I sold you. I sold you on it because I wanted you to come out here. Why? Because I thought it'd be easier without parole to go to a halfway house. Are you serious? Yeah. I can't tell if you're being serious or not. Man, dude, come on. I can't live with someone like this. You're like verbally abusive. Yeah. I just can't be with you. I don't This want is to be with you the either. kind of It's very person I obvious. become when I'm with you. I think Like, that was you all along. Yeah. You're showing your true colors. That could be it.
I moved my entire life across the country for him, and he was probably using me the entire time. But I'm so fed up that I'm done. I can't do it anymore. You're not gonna go back to Florida and cry to mom and dad? No, I'll be fine. I'll cry it out like a normal breakup, and I'll live. I'm fine out here on my own. Like, I really am. What are we gonna do? Because I cannot live with you? I cannot. Okay, then don't. Leave. Not. I shouldn't have to be the one to leave. Then don't tell me I can't live with you and then I shouldn't be doing it. No. What? He sucks. What if I want to bring a guy home? Like, I just feel like that's super awkward. Just let me know. Give me some advance time and I'll get out of there. I can deal with it. I can walk away. I don't think you can, because you're I getting can pretty shut the upset door. just talking to me. I'm not leaving. I don't want to leave. Think you'll be able to afford the rent? Alone? No. I'll find someone. What, people from prison? I can bring a ton of alcohol into the house and then call your PO up and she'll kick you right out. Do it. I want to see how that will go. I would. Because that's dishonest. It's not dishonest. That's my problem with you, because you're not honest. No, that's not... it. You see me shaking right now because I'm you over you, dude. You have like, issues. you cannot be honest, and it drives me nuts. You have Like, I issues. can't do it. I can't. So then don't live with me. Kiss my ass. Bitch, dude. Drama. I can't do it, man. I can't sit there anymore. I can't do it. That engagement that I gave her in prison, like, I meant that moment, and I feel nuts for it. Like, what was I thinking? Like, you don't know nobody. I'm telling you, you don't know nobody till you live with them. After tonight, I think it's best for her just to get out. I don't want to be in the same state as her, if I'm being honest. Like, just a sour taste in my mouth now. I was in prison, and she was there at the hardest time of my life. I can never forget that, Bianca. But that's no excuse or reason or justification to treat me any sort of bad way because you did something for me. It would have been better for both of us if I was just upfront about my feelings, and, you know, maybe we could have worked on them then. But I let that go on for too long, and my heart is just empty for you now. That's nobody's fault but your own. Can I go eat? All right. Yes. Ugh. You will find somebody one day that will put up with all your but I'm just not that guy for you. And I'm sorry I strung you along for as long as I did, but I was holding on for hope because I still believed this person that I fell for was still in there beating in your chest. But I was wrong. It's delicious. I think Daniel did love me, but, like, I'm really glad that this happened now, 5 months later, than us being married and being together for 5 years, and then he shows his true self, and then I'm stuck with a baby, and I'm stuck going through a divorce. So you're making that declaration, you're moving out? Maybe. I don't know. I cannot predict it right now. God. What? This is a piece of you know that, right? You're literally cheating on me with so many women. Yep. I just looked at literally every message. Yep. It goes back from a long time ago. Good. You're a piece Good, thank you. of literal piece of that is awful behavior. Okay, stay out of my room. Don't tell me what I need to work on when you don't even know how to work on yourself. So off. I am done with you. I've been done with you since the second day that I met you. Eat. I don't know if there's anything going on between Demadric and his baby mama. I do need someone to get to the bottom of this. She the conniving bitch. I've been through this enough to know. Prepare for the worst. It's my attorney, okay? Done. Done. Tell me. I gotta go. I gotta go. Yeah, because we're just... Yeah. Okay. All right, be right back. I'm scared, man.
have warrants or something for the city? Is that what you're paying on? I thought I paid it because when I went to court, he said he dropped everything. I should have just had a misdemeanor on there, Class B, but I don't know. It hasn't affected me this whole time. How long did you do time for? I didn't do time. You didn't do time? Okay. No, he didn't make me do time. It was just basically time served. He dropped the other charges. Okay. You are going to be receiving 2 citations today for the display of expired plates. You have 30 days to contact Judge Engelbush at this address or contact him at this phone number. All right. Before you get safe. Yesterday, I was freaking out and stuff because I had some past charges from when my driver's license or whatever got suspended. Too much going on for me, like seriously too much going on because I'm scared. None of that. I ain't got time for it. It feels like it's not for real. Right now, I'm kind of just on my toes. I don't know, I'm just ready to move on from the situation. Okay. I don't even have time to finish. You Jawala? Yes, sir. My name's Keith. I'm an investigator for a law firm. We're representing a client that you had made a police report on. You know Kiana? Mm-hmm. Do you have a few minutes I could maybe come in and visit with you? How was the morning so far? Morning's been okay. I just wanted to get us out the house and do something nice, you know what I mean? Aw, look at it. I love it. And your chariot awaits, my dear. Oh, thank you, baby. Well, no, I'm trying. You gotta relax. I can't talk about it. I'm trying to dry out my face, but they're gonna stop dropping. Okay. This is hard. I am overwhelmed. All the drama with Demarc's baby mama puts a lot on the relationship, and we're still trying to mend that foundation. Do you feel like there's anything I can do moving forward to be better, to do better? I just need a change. I need something. Are you willing to open up to me? Not only am I your man, I'm your best friend. And I promise, man, what we been going through there, you know what I mean? And dedicated. I don't know if there is anything going on between Demarc and his baby mama. But I want to build that trust to where I don't have to worry about that. We gonna do it. Thank you. Who's Kiana to you? My baby's father, Demarc, his girlfriend. It's a bold move that Kiana sent the investigator to my house. Can I come in for a little bit? We can sit out here. Yeah, okay. I feel like Kiana and him are trying to make it seem like I would do something to my own car. I ain't that damn delusional over that man. She the conniving bitch, so. She had came vandalize my car, so I just need her out my life. Ain't nobody got time for all this. Nobody deserves that. Whoever did that needs to be held accountable for it. But Kiana's saying she didn't do it. Why do you think she'd do this out of the blue? Cuckoo over a man, so. Now, do you have any intent of getting back with him? Why are these questions? I'm on the side of the truth. That's all I care about. Would you be willing to take a polygraph? But who gonna fail, me or her? What this is? It's the sonogram from when I found out. Baby, the measurements. Like, so if I had to ask you, like, one time, like, what is the chance of this baby being mine?
is it mine? I'd have to say 50%. I mean, there was only one other man that I had slept with. So you telling me I might? Correct. I don't know that right now, man. No, I don't care. Put it up. You're here to talk to me. Your call has been forwarded to voicemail. James Keith, I don't know what the you got going on. Oh, I'm finna kill him. I'm finna choke the piss out of him. How the does he keep hanging up when I'm trying to leave a voicemail? What? What now? Go back to living your life. I told you, like, leave me alone. Go be happy. Go do you. But instead, your little car keeps bringing your ass back to the house, and I keep letting you in. It's clear that you're out here making me just seem like this other woman, but I'm not it. I'm not this other woman. I am the woman. I feel like I don't even know what I'm doing right now in my life, man. It's like everything going good, and it's like, damn, like, like where are we supposed to be at? Where we would have been at? I mean, What if? I've been with you since day one. That relationship ain't going nowhere, regardless who you're with or who I'm with. Me and Brooke, our relationship has been off and on, but I love her. But at the same time, I have a great amount of love for Alex. So it's like, it's complicated. Figure it out. Like, you ain't got to play with me with your damn words. But you got me fighting these stupid bitches in an alleyway for what? When I went through the miscarriage, and it was yours, and you knew that, you left me to go through that by myself. I went through that by myself. I'm gonna go through this by myself. I never saw proof of a miscarriage. I was just told about a miscarriage. Like, people will say anything. People know how to pull on the right strings, you know what I'm saying? In my heart, I just felt like you were just trying to keep me around. So it's like, now you got this proof. Now you pulling out proof. So I'm like, damn, now the situation really getting deep, like it's getting real. So I mean, like, what's the next step? What about a DNA test? Can we do that? Don't they do DNA tests? Or what? Yeah, they do, but it's high risk and it's not gonna be recommended by the midwife. So does that mean I gotta wait till the baby's here to find out, or what? All right, well, if it's mine, I'm gonna take care of it. I'm gonna do it as a man. You know, at the end of the day, I've always wanted a child, but at the same time, like, I know God works in mysterious ways, and it's like, if he ain't ready for me to have a child, he ain't gonna bless me with one. Like, you over here stressing about a situation that you put yourself in. You could have left it in the prison cells. But that would be denying the connection or denying the emotion. Or What are you doing now? You're denying the connection, the emotion, the love, the everything to be laid up with this female when you don't want to be with her because you keep ending up here. No, don't touch me. You can't tell me that this is complicated. I don't know. Now you're upset. Where are you going? I need you to leave me alone, JK. JK has caused a lot of pain in my life. I mean, he's consistently like, hey, I want to be with you. I want to come home. I want to get married. I want to have this family. I'm leaving her alone. I'm walking away, but he's still in the situation. And I'm just at the point that I'm like, I have to think about myself and my child. It's whatever. I've got this. 9 times out of 10, he's got this damn cell phone in his hand. So why are my phone calls not being answered? I can guarantee you that there's something going on that I don't know about. Okay, then I'll go. I'll just go. If you Then don't go. want me here, I'll leave. But I'm trying to talk to you. I don't want to talk, JK. There's nothing to talk about. It's complicated. How is it complicated, bro? Everything's complicated. What do you mean? Life complicated. No, it's what you make it. Okay, then I'll go. That's crazy, though. I have a great amount of love for Alex. She been there since day one, you know what I'm saying? It's just like the way plays out, I can't control that. I can't control that right before I came home, you broke trust and I got in a situation with Brooke, you know what I'm saying? So I can't control that.
And there are days where I sit and think and I'm like, damn, what if? You know what I'm saying? Like, what if me and Alex would have stayed together? You know what I'm saying? But happened. I'm about to pull up to Alex's house and see what is going on. I'm not playing games with neither one of these. The bitch done found out once, she can find out again. And it's not gonna be good. I have to tell you something. Okay, Trey. I love you. I apologize. I'm listening. Yeah, head count. I can do 250 just for my side. Gets up that quick. I can't do that. I would pay for my parts. What? You're doing too much right now. I haven't been honest, and I haven't told Justine about certain things. Troy, do you mind if I borrow your dad really quickly? Yes. Okay, let's talk. I have to tell you something. Yes, baby. You pregnant? Yeah. You dead ass. It's not a joke. I'm dead serious. Yes. I'm doing one of the most difficult things that I can do right now. Trying to put my past behind me and put my father away peacefully. And this is definitely a spirit lifter. This might have been the news that I actually needed to hear. I'm just excited to experience motherhood again. And I'm married. I have my husband here. Oh, I can't believe this is real. I love you. I love you too. I apologize for all of the I took you through. I apologize for all the hurtful things that I said to you. I want to be there for my family. I want everybody to just be okay. I want everybody to just be happy. I definitely don't want anybody to know right now because this is your moment for your dad. And I know that this is very important for you to move forward. I can keep a secret. You could definitely keep a secret. Me, I'm like, ugh, I'm itching. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे टॉपिक पे चलते हैं कि जो एक गरीब बहुत ही कष्टदायी में रहता है और उसके बाद एक अमीर देखिए तो एकदम शान और शौकत से जीता है। तो भाई हम हर एक इंसान को ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गरीब गरीब ही रह जाए और अमीर उससे भी ज़्यादा अमीर हो जाए, क्योंकि हर किसी के पास हर एक चीज़ की अथॉरिटी होती है। हर चीज़ की उसके पास अथॉरिटी रहती है। हर चीज़ की उसके पास अपना होता है, जो कि वो कुछ भी कर सकता है। अपना राइट्स रहता है, अपना अथवा रहता है, अपना हर एक चीज़ अपना रहता है, अपना संविधान रहता है, अपना हर एक चीज़ रहता है, जो कि वो कोई कुछ भी कर सकता है। किसी को ये नहीं रहता है कि आप अमीर हैं तो आप नहीं करेंगे, आप गरीब हैं तो आप नहीं करेंगे। जो अमीर खा सकता है, जो अमीर पहन सकता है, जो अमीर कर सकता है, वो तुम भी कर सकते हो। एक इंसानियत के नाते बता रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ, क्योंकि कोई आज के डेट में कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता है। हर कोई एक बराबर होता है। समाज में अगर आप चलते हैं तो समाज में हर किसी को एक बराबर देखा जाता है। और हाँ, कलयुग है भाई। कलयुग में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें मिलेंगी सुनने को, तरह तरह के अशब्द बातें सुनने को मिलेगी। ये नहीं है कि एक अमीर को कभी सुनने को नहीं मिलता है, वो आराम से रहता है, और एक गरीब को बहुत सुनने को मिलता है, वो गरीब को हमेशा सताया जाता है। ऐसी बात नहीं है, अमीर को भी सताया जाता है, अमीर के पास भी वो समस्याएं आती हैं। हर कोई अमीर जो है, अमीर अपने से नहीं बनता है, अमीर उसको बनने की मजबूरी हो जाती है उसको बनना, क्योंकि वो भी एक गरीब ही था, वो भी एक परेशानी में था, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ तक जा सकता था। लेकिन उसके पास जो हिम्मत, जो दिमाग और जो उसके दिल में जो बैठ गया कि मैं भी ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ। अगर कोई भी अमीर हो या गरीब हो, अगर वो चाहे कि मैं ये कर लूँ तो कर सकता है। ये नहीं, हर एक इंसान के अंदर वो हौसला होती है, वो चीज़ होती है जो कि वो उभार नहीं पाता है। और अगर वो चीज़ वो जान जाए, अगर वही चीज़ अगर वो उभार देना, अगर वही चीज़ उसके मन से बाहर आ जाए ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता। क्योंकि हर कोई इंसान जो है पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन उसके पास वो थिंकिंग एक बराबर नहीं होती। ये कहा गया है ना कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो पाँचों उंगलियां सच में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का ये
तेरा मेरा जैसे छोटा बड़ा हर उंगली का छोटा थोड़ा बहुत छोटा रहता है, छोटा बड़ा रहता है। लेकिन क्या है कि वैसे ही सेम कंडीशन में किसी के पास एक बराबर ज्ञान नहीं रहता है। हर एक इंसान की एक जैसी दिमाग नहीं होती है। हाँ, दिमाग चेंज रहता है भाई, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी विचारधाराएँ होती हैं, जो कि वो अपने विचार से जो समझ सकता है, जो बोल सकता है, जो कर सकता है वो करता है। और वो जितना सोच सकता है उतना वो करता है। ये नहीं कि हर इंसान मेहनत करता है, ये नहीं कि हर इंसान कोई कम मेहनत करता है तो कोई कम मेहनत करता है, कम ऊंचाई पर जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। तो और जो नहीं करता है, जो आलसी होते हैं, तो भाई उसकी कोई कहने की बात ही नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान हो अगर वो मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है। जब मेहनत नहीं करोगे भाई तो फल तो तुम्हें मिलेगा नहीं। क्योंकि किसी का भी कोई भी समस्या हो, अगर जब तक आप उसको हल नहीं निकालेंगे तब तक वो समस्या सुलझेगा नहीं। तो यही एक ज़िंदगी का यही एक मकसद होता है कि तुम किसी भी समस्या तुम्हारे देखो ज़िंदगी में, अगर तुम पृथ्वी पे आए हो पृथ्वी पे आए हो तो भाई ये मृत्यु लोक है, मरना तो तय है। ये तो है नहीं कि तुम यहाँ पे आजीवन अमर हो, तुम जिंदा हमेशा नहीं रह सकते, एक दिन न एक दिन तुम्हें भी जाना है। तो भाई आए हो तो खुशी खुशी रहो और साथ में सबको लेके चलो। और उसके बाद गांव समाज को, देश को अपने देखते हुए नागरिकों को जैसे हैं उनके साथ चलिए, उनके विचारधाराएँ समझिए और कुछ ऐसा करिए कि आपका भी नाम हो। अगर आप ना रहें, हो सकता है आपका दूसरा जन्म है तो भी आपके नाम से हो सकता है आप अगले जन्म में दूसरा कुछ हो। तो भाई वो बात की बात है। और मतलब कि ऐसा करिए कि आपका नाम हमेशा बना रहे। और देखिए, नाम ये नहीं होता है कि नाम को हम गिराते हैं। नाम देखिए, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे ना तब नाम बनता है। नाम तो वैसे भी आपका बना रहेगा, क्योंकि आपके नाम के आगे आपके पिता का नाम होता है। पहले आप बचपन में रहे होंगे तो आपके पिता के नाम से आपको जाना जाता है। लेकिन आप सोचिए, अपने दिमाग को सोचिए और अपने दिमाग से ये पूछिए कि काश हम क्या करें, हम कैसे करें, कुछ ऐसा करें कि हमारे नाम के साथ पापा का भी नाम जुड़े। जगह मेरा नाम अगर पापा कहीं जाते हैं तो ये हो कि इनका बेटा है या फिर इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी, जैसे कि कोई मेरा नाम राम है तो मैं ऐसा काम करूं, मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरे पिताजी जा रहे हैं तो ये हो कि राम के पिताजी जा रहे हैं। ये ना हो कि उनके मतलब कि राम के पापा हैं, ऐसे कोई बुलाए। ये ना कि पापा के नाम से मुझे जाने। ऐसा कुछ करने की विचार अपने दिमाग में रखिए और कुछ ऐसा करिए कि आपको कोई परख ना पाए और आप इतना शातिर दिमाग बनिए कि आपको कोई समझ भी ना पाए कि आप किस क्वालिटी के हैं। क्वालिटी आपका हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी आप लग्जरी कार, कितना भी आप अमीर हो जाएं, लेकिन कभी भी अपने पिछले ज़िंदगी का मत भूलिए। पीछे जो बीत गया उसको मत भूलिए। अगर पीछे जो भूल गया वो समझ लिए कि दुनिया से टूट गया, और दुनिया से टूट गया तो समझ लीजिए गांव समाज में उसका कोई इज्जत नहीं रह गया। अगर इज्जत बचानी है, इज्जत रखनी है तो भाई गांव समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा और अपने परिवार को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, जब तक तुम्हारे पास शान शौकत जो इज्जत है, तब तक तुम्हारा हर कोई इज्जत करता है। अगर आपके पास आज अगर आपके पास इज्जत चली गए, हाँ, और एक और शब्द मैं बता दूं, गलत करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी इज्जत और समाज में आपकी इज्जत, शान और शौकत, आपके पिता का नाम, आपके परिवार का नाम खराब हो। ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि ऐसा गलती करने की वजह से आपके परिवार पे बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जो कि परिवार बहुत टूट जाता है। और उस परिवार को ऐसा झटका देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा झटका देंगे तो समझ लीजिए कि आपका परिवार बहुत दुखी मन से आपको देखेगा और आप उस परिवार के सदस्य रहकर आप टूट जाएंगे और आपके नज़र में वो गिर जाएंगे, उनके नज़र में, कि तुम बेकार हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार तुम्हें गलत नज़र से देखे, गलत तरीके से देखे कि तुम फालतू हो। ऐसा कोई ऐसे तो कोई परिवार अपने परिवार को सोचता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये ऐसा हो सकता है अगर आप गलत करेंगे तो। अगर आप सही हैं तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, गांव समाज भी नहीं बोल सकता है।
और आप जहाँ खड़ा होंगे वहाँ आपका इज्जत होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम इज्जतदार बने तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अगर वैसे चलना है तो भेड़ों की तरह चलते रहिए, जैसे सब चलते हैं वैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम सोचते हैं कि हम कहीं भी जाएं हमारी इज्जत रहे और हम खड़े हों तो हमारी नाम हो। तो भाई उसके लिए आपको अथाह प्रयास, अथाह परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी इज्जत, ऐसी मेहनत करने से इज्जत पाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि जो इज्जत मिलती है ना वो मेहनत तुम्हारी मिलती है। जब आप मेहनत करेंगे ना, देखो मैं एक और बात बता दूं, मेहनत का मतलब हमारा ये नहीं कि आप मेहनत करिए, मतलब आप अपनी शारीरिक बल से मेहनत नहीं मैं कर रहा हूँ। मेहनत का मतलब मेरा आप दिमाग लगाइए हर चीज़ से, मतलब मेहनत हमारा करने का मतलब कि शारीरिक बल केवल मेहनत नहीं होता है। मेहनत करने का मतलब कि आपका दिमाग का मेहनत और सेंसिटिविटी का मेहनत, आपके अंदर बॉडी का मेहनत, जो शरीर की बल है उसको भी ज़रूरी है। ये नहीं कि ज़रूरी वो नहीं है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि देखिए हर फील्ड में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो ऑलराउंडर है तभी आप सक्सेस हैं। अगर आप ऑलराउंडर नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि एक किसी के भरोसे पे आप खड़े हैं। इसलिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हर किसी को अपने आप को ऑलराउंडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपका ये नहीं देखेगा कि आप कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि अगर आप आज गिर जाते हैं तो खड़ा करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से उसका जुगाड़ बना के रखे हैं कि हम अपने सिस्टम के आधार पर हम अपना सामान रखे हैं, तो उसको आप किसी को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपके पास बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से खड़ा हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ गया, अगर आपके पास नहीं है तो भाई बात की बात है, क्योंकि हर कोई इंसान अकेला नहीं रहता है, उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर रहता है। इसलिए तुम्हारे साथ भी कोई होगा जो कि तुम्हारा सपोर्ट करेगा, और कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, क्योंकि कोई दुख में साथ देता है और कोई सुख में साथ देता है। और दिखावे के लोग जो हैं वो सुख में साथ देते हैं और दुख में भाग जाते हैं। तो ऐसे दोस्त, ऐसे परिवार, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि तुम्हारे सुख में काम ना आए, सुख में काम आए, दुख में काम ना आए। तो भाई दुख में काम आने से वही सच्चा होता है। सच्चा मित्र हो, चाहे सच्चा तुम्हारा अगल बगल के लोग हों, चाहे आपका रिश्तेदार हो, वही सच्चा होता है जो आपके दुख में काम देता है। अगर जो दुख में काम नहीं दिया तो मैं बता दूं उस सुख में भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। क्योंकि उनको भूल जाओ सुख में, क्योंकि वो तुम्हारे जो है, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो कि हर चीज़ में कोई एक कीड़ा रहता है जो किसी चीज़ को ख़राब करता है। तो वो वही कीड़े हैं जो तुम्हारे परिवार को और तुम्हें तोड़ रहे हैं। तो उनको, ऐसे कीड़ों को आप उसको अलग कर दो, उसको छटका दो, उसको मार डालो कि वो तुम्हें ख़राब ना कर सके। और तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हें भड़काते हैं, तुम्हारे उलझन में डाल देते हैं, तुम्हारी उल्टी सीधी बातें इधर से उधर करते हैं, तुम्हारे हर चीज़ ऐसे काम करेंगे जो कि तुम उससे नफ़रत करने लगोगे। जो तुम्हारे अच्छे होते हैं, जिसको तुम अच्छे से जानते हो, जिसको तुम पहचान सकते हो कि हम उसको जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी समय आप अगर अपने परिवार से कभी भी अलग मत होना, क्योंकि परिवार ही आपका एक सच्चा मित्र होता है। मैं तो भरोसा करता हूँ तो केवल परिवार पे करता हूँ। आपको बता दूँ एक सच्चाई कि मैं भरोसा करता हूँ तो केवल परिवार पे करता हूँ और किसी के ऊपर नहीं करता हूँ, क्योंकि परिवार ही एक है जो मुसीबत में साथ देता है और बाकी कोई नहीं है जो कि तुम्हारा मुसीबत में साथ देगा। क्योंकि हर कोई इंसान तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। कि हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो ठीक, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं भाई। अपने तरीके से आपकी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को हम बता नहीं सकते हैं कि वो करना क्या चाहता है, कर क्या सकता है। हो सकता है हमारी बातें से कुछ लोग को अच्छा लगे, कुछ लोग को ख़राब लगे, कुछ लोग को बुरा लगे, लेकिन कुछ लोग बहुत बेहतरीन कर जाएं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई बहुत लोग
माइंड बताए ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी किसी का दिमाग अच्छा होता है, किसी किसी का ख़राब होता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो जिसको बुरा लगा हो उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ, और जिसको अच्छा लगा हो भाई उसके लिए थैंक्स हमारे जो इस वीडियो को देखने के लिए। क्योंकि हम कुछ बता रहे हैं तो उससे आपको कुछ सीख मिला, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि आप लोग को हमें कुछ वीडियो बनाने की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें भी खुशी मिला। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब बताने से आपको मोटिवेट हो रहे हैं आप, और उसके बाद हमारे बताने से आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं कितने लोग को मुझे ये बात, हमारी जो वीडियो है इससे आपको अच्छा लगा, और कितने लोग को बुरा लगा। भाई बुरा लगने वाले को ही बता देंगे, क्योंकि उनसे मैं माफ़ी मांग लूँगा। अगर कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, मैं कुछ गलत बोला हूँ, हमें जितने वीडियो में मोटिवेशनल अपलोड किया हूँ, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी किसी को भी बुरा लगा हो, तो भाई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जितने लोग हैं भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोई कमी तो नहीं है हमारे आवाज़ में या फिर हमारे बातों पर। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बताएं ज़रूर, मैं उसको सुधार लूँगा, मैं अपने आप को और थोड़ा सा एक्टिव करूँगा कि मैं ऐसा शब्द ना बोलूँ जिससे आपको तकलीफ़ हो। क्योंकि आप ही लोग हम सब कैसे बने हैं, हम सब भाई परिवार हैं, हम सब जुड़े हुए हैं एक साथ, तो परिवार के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो भाई आप हैं तो हम भी हैं, हम भी आपके ही सदस्य हैं, आपके ही परिवार के हैं। तो हम भी आपके भाई ही हैं, आपके बेटे हैं। क्योंकि हम हैं तो यहीं के, आपके ही देश के हैं, आपके ही नागरिक हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी बातों को। तो जो भी गलती हुई हो, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपसे गलती हुई है, मैं उसको सुधार लूँगा। और धन्यवाद दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि जान सकते हैं, आज मेरा टॉपिक है जलन की भावना। जलन की भावना किसी के अंदर पैदाइश नहीं होती है। अगर जब पैदा होता है तो उसके अंदर जलन नहीं होती है, लेकिन पैदा होने के बाद जलन उसके अंदर आ जाती है, इसलिए कि उस दूसरे की तरक्की देखता है तब उसको जलन हो जाती है। लेकिन दूसरे का तरक्की देखने से जलन नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा मेहनत किया, इसलिए वो इतना मेहनत करने के बाद वो आगे बढ़ रहा है। तुम्हें जलन किस बात की हो रही है? अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे जलन हो रही है, तो आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़िए। आप अगर किसी के देखने रहने से जलन नहीं आनी चाहिए। अगर जलन आती है तो उसको आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए, और आप भी सोचिए कि हम भी मेहनत करें और वैसा करें कि हमें जलन ना हो। क्योंकि जलन, देखिए, जलन एक बहुत बेकार चीज़ होती है, ये एकदम खतरनाक चीज़ होती है, बहुत डेंजरस चीज़ होती है। अगर तुम्हारे अंदर जलन की भावना आ जाए ना, तो तुम्हारा माइंड जो है ना वो घूम जाता है, और तुम हमेशा निगेटिव सोचने लगते हो, और हमेशा उसके विपरीत सोचते हो, और अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हो। क्योंकि जलन की भावना किसी के अंदर नहीं हो चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ाइए, और उसको साहस दीजिए, हाँ भाई तुम ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे गांव समाज में हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं तो हमें देखकर दूसरा जलता है, लेकिन वो जो तरक्की कर रहा है ना वो जलता नहीं है तुमसे, वो तुम्हें देख कर ना कि तुम्हें उसको और खुशी मिलती है, और आगे और तेजी से बढ़ता है। क्योंकि तुम इसलिए पीछे रह जाते हो, उसको देखकर तुम हमेशा उसको गिराने की कोशिश करते हो, और वो हमेशा तुम्हें देखकर वो आगे बढ़ना कोशिश करता है, इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। और जलन करने वाले हमेशा गिरते चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और अंततः वो गिर जाते हैं नीचे, एकदम कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो हमेशा जो तरक्की करने की कोशिश करता है ना, वही सबसे आगे बढ़ता है। अगर तरक्की करने की कोशिश करो ना तो वही सबसे आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ होती है कि हमें कुछ करना है, लेकिन जो दूसरे को विपरीत देखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि उसके अंदर ना जैसे कि अजीब ढंग की फीलिंग होती है कि भाई क्योंकि भाई देखो, अगर कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ रहा है ना, अगर कोई भी आदमी अगर मेहनत करके वो आगे बढ़ रहा है ना, तो पहले आपके जैसा ही था, ये नहीं कि वो डायरेक्ट आपसे ऊपर चला गया। पहले जैसे ही आप ही के जैसे था, वो भी पहले आपका ही जो है काम, जैसे आप हैं नॉर्मल, वैसे ही वो भी नॉर्मल था, लेकिन वो मेहनत किया। जब तुम सोए थे ना तब वो जाग रहा था, जब तुम सोए थे तब वो जाग रहा था, और जब तुम उठते हो ना तब वो सोता है। क्योंकि तुम अगर देखोगे ना, अगर सब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं होता है भाई, और अमीर कोई नहीं होता है, सब एक जैसे ही होते हैं। आए हैं ज़मीन पर,
ज़मीन पर आए हैं तो भाई भगवान ने भेजा है कुछ करने के लिए, तो कुछ कर लो। कि क्यों दूसरे को दोष दे रहे हो कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं पीछे रह गया, इसलिए वो आगे। अरे भाई गरीब हो ठीक है, मान लिया मैंने तुमको गरीब हो, लेकिन गरीब हो तो उसको गरीबी मत दिखाइए ना। क्यों गरीबी दिखा रहे हो? उसको तुम कोशिश करो कि मैं भी उससे भी आगे बढ़ूँ। हर किसी का ये नहीं होता है कि वो मोटिव नहीं होता है कि वो यहाँ पे आने के बाद ही वो अमीर बन के ही वो आया हो। हर कोई अमीर बन के नहीं आया है, हर कोई गरीब ही था, लेकिन उसको अमीर कैसे बना? वो मेहनत किया, उतना मेहनत किया कि वो उतना वहाँ तक पहुँचा। और आप भी पहुँच सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं पहुँच सकते हो, आप भी पहुँच सकते हो। आपके पास वो हौसला है, लेकिन आप लोग अपने हौसले को ना निगेटिव वे में ले चले जाते हैं, पॉजिटिव नहीं लाते हैं, उसको हमेशा उल्टा विपरीत दिशा में ले जाते हैं। जब विपरीत दिशा में आपकी दिमाग और आपकी मन जो भटक गया ना, तो आप उसको फिर पॉजिटिव वे में, मतलब सही दिशा में लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उससे दुगना मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपने निगेटिव सोच रहे थे उस टाइम अगर आप मेहनत किए होते ना, जब आप गलत दिशा में जा रहे थे ना, अगर उस टाइम आप मेहनत किए होते ना, तो आपको ऐसी स्थिति नहीं आती कि आप ऐसी स्थिति में आप ऐसे काम करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का ना, जब किसी भी चीज़ को अगर आप बचपन से उसको ऐसा सिखाओ ना कि वो बवाल हो जाए, वो मतलब कि ऐसा उसको कोई भी एक प्रकार से किसी भी चीज़ को ले लो, अगर तुमने उसको सिखाया, कुछ भी अगर अच्छे से समझाया ना, तो बचपन से उसको पालो पोसो और जैसे कहोगे वैसे ही करेगा। एक मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुत्ते को ही देख लीजिए। अगर कुत्ते को आप बचपन से उसको अपने पास रखो, पालो पोसो, उसको बाद उसको खिलाओ पिलाओ, जो भी करना है उसको बचपन से सिखाओ ना, तो एक ट्रेंड डॉग हो जाता है वो, और वो जैसे आप कहेंगे वैसे ही करता है। तो मेरे भाई, अगर आप अपने दिमाग को जो बेसिक से ही अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से समझाइए और अच्छे से उसको यूज करिए ना, तो बहुत आगे ले जाता है। और लेकिन वही चीज़ अगर आप सोचें कि हम डायरेक्ट जंप करके चले जाएं, तो भाई जंप करने से क्या है कि एग्जांपल ले लो, कोई सीढ़ी है, सीढ़ी को आप सोचिए कि हम 2 सीढ़ी जंप करके चढ़ जाएं ऊपर, लेकिन 2 सीढ़ी क्या हुआ, आप जंप किए, ठीक है जंप किए, लेकिन डाक गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं डाके तो सीधा नीचे आ जाएंगे, गिरेंगे तो चोट लगेगा तो उससे भी पीछे जाएंगे। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट पाने की कोशिश मत करिए, मेहनत करिए, उसके बाद आपको नहीं मिलता है, नहीं हासिल होता है, तो प्रयास कर सकते हैं जंप करने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं एक एक सीढ़ी एक एक कदम करके आगे बढ़ के जा सकता हूं, हमारे पास समय है, तो उसको वैसा करिए। हाँ, आपके पास समय नहीं है, तब आप उस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं कि मैं जंप करूं, मैं थोड़ा सा प्रयास करूं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसा करूं कि पा सकता हूं, उस चीज़ को पा सकता हूं। क्योंकि अगर हर कोई अगर ये चाहे कि मैं ये चीज़ नहीं पाऊं, अगर वो चीज़ सोच ले कि मुझे ये नहीं पा पाऊंगा, तो नहीं पा सकता, क्योंकि उसके थिंकिंग में बैठ चुका है, उसके दिमाग में बैठ चुका है कि मैं वो चीज़ नहीं पा सकता। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सोचने की। अगर आपके पास सोचने की सेंस की जो नर्व सेल होता है ना, वो जो होता है, वो जो ये जो दिमाग का जो नस होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वो आपको अगर हमेशा वो देखेंगे, अगर प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं आप। उसको एक बार ध्यान से सोचिए, एकदम मन अपना आंख बंद करके एकदम शांत दिमाग से सोचिए, तब देखिए वो कितना तेज काम करता है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, हम हो या आप हो, अगर है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं। और भगवान रहेंगे कहाँ से? भगवान के तो हम लोग मार चुके हैं, क्योंकि झूठे कसमें खा के मार दिए हैं। कहेंगे कि भगवान है, भगवान कसम मैं ये नहीं बोला था। अरे भगवान की कसम खा गए। कसम खाने की मतलब क्या होता है? क्रिया खाने की मतलब क्या होता है? कसम खाने का मतलब ये होता है कि अगर वो गलत बात है, अगर तुमने उसका कसम खा गया तो वो मर जाता है। तो भाई भगवान का झूठी कसम खाने वाले भगवान को तो मार चुके हैं, तो बताइए फिर भगवान रह कहाँ से गए हैं? और बाद में यही कहेंगे कि मैंने भगवान को माना, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। अरे भगवान जब जिंदा रहेंगे तब तो तुम्हें देखेंगे, वो तो जिंदा ही नहीं है, तो देखेंगे कहाँ से? तो भाई वो बातें अलग हैं, उसकी बात छोड़िए। जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं
कि हमारी जो विचार है, जो मन है, जो धारा, मन की धाराएं हैं, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको कंट्रोल करिए अपने आप को, और किसी को देखकर उत्सुक और अपने आप को ग्लानि मत फील करिए। हाँ, ये आप सोचिए कि मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, वो अपनी जगह पे ठीक है। किसी को देख को आप बुराई मत करिए, किसी का देख के आप वो काम मत करिए जो तुम आपसे नहीं होता है और आप करना चाहते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मैं प्रयास अथक प्रयास कर सकते हैं, और उसके बाद उसका प्रयास जो है आप भी अपने अंदर ला सकते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ, हौसला बना सकते हैं, और हो सकता है उससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। लेकिन ये मत कहिए कि अगला आदमी को आप वो चढ़ रहा है तो उसका टांग पकड़ के आप खींच दें पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ मत खींचिए, क्योंकि क्या पता पीछे के खींचने के चक्कर में आप उससे पहले आप सरक जाएं, उसके पहले आप गिर जाएं। इसलिए किसी को गिराने की कोशिश मत करिए। अगर गिराने की कोशिश करेंगे तो आप भी गिर सकते हैं, और उससे ज़्यादा घाटा आपका होगा, क्योंकि वो उतना ऊंचाई पहुंच चुका है। अगर नहीं गिरा तो उससे भी ऊंचा चला जाएगा, और वो गिरा भी तो भी कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि उसके पास उतना क्षमता है और आपके पास कुछ नहीं क्षमता है। अगर आप उसको गिराने की कोशिश करेंगे, आप अगर 1 देंगे तो 2 देगा, तो आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। कि अगर आप किसी भी चीज़ में, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आप लोग इतना दिमाग तो है ही, इतना आपके पास सेंस है कि जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वो मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये यूट्यूब के जो है वो अलाउ नहीं करता है कि ऐसी बात आप बोलें कि जिससे किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को या फिर किसी के दिल को ठोस पहुँचे। इसलिए मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं। और मेरी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो थिंकिंग है उनका, वो थिंकिंग जो सोचते हैं समझते हैं, वो बहुत ही घटिया किस्म की होती है। और उस घटिया किस्म को ना, थिंकिंग को ना अपनी चेंज करिए, क्योंकि हमारे देश में ना थिंकिंग को चेंज करने की बहुत प्रयास करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो है समस्या चल रही है केवल सोच को लेकर। अगर सोच हमारी सही हो जाए ना तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है, हमारा गांव समाज बहुत आगे जा सकता है। और हमारे गांव समाज में यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे दिल में जो हमारी सोच है, हम हर किसी को गिराने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज चाह जाए ना, गिराने की कोशिश ना करें और हम सोचें कि हम उसको अपने जैसे, हम उसको भी साथ ले चले ना, अगर साथ साथ चले ना, तो हमारे देश में ना बहुत तरक्की होगी, हमारे गांव समाज में बहुत तरक्की होगी। और हमारा ही नहीं, हमारा पूरा गांव समाज, हमारा पूरा परिवार, हमारा सबके सब खुश हैं। क्योंकि हम एक बचपन में पढ़ाई करते हैं तो उस समय हमें यही सिखाया जाता है कि हम साथ साथ रहें। अगर आप शपथ लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्कूल में शपथ दिया जाता है कि हम सब भाई बहन हैं, हम सब भाई बहन हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, हम सबका इनका आदर करेंगे, बच्चे का ही आदर करेंगे। क्योंकि यही चीज़ सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ हम नहीं सीखते हैं। अंततः बाद में आके हम यही कहते हैं कि उसका जस्ट उल्टा हम लोग सीख लेते हैं, और वही चीज़ हम लोग नहीं सीख पाते हैं। यही चीज़ हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं, हमेशा निगेटिव सोचते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में वो नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि हम उसके बात को ध्यान नहीं देते हैं। वो चीज़ हमें बार बार रटाया जाता है। हर चीज़ को, ये भी समस्याएं हैं कि हर चीज़ को अगर रटाया जाए ना तो उसको वो याद नहीं रहता है। अगर आपको जो आपको एक्टिविटी जो आपको रियल दिखा के किया जाए ना, उसको आप ध्यान में रख लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। और एक बात ये भी बोल दूं कि जो है पॉजिटिव चीज़ ना, जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो जल्दी दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन अगर गलत चीज़ है ना तुरंत दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि ये मानव की, ये जो इंसान की ये जो मानव होता है ना, ये उनके दिमाग का ना बहुत गंदी सोच है कि अच्छी बात दिमाग में नहीं रखते हैं, बुरी बात दिमाग में रख लेते हैं। क्योंकि ये दिमाग जो है ना बहुत डिस्टर्ब रहता है, और ये बहुत ख़राब चीज़ है दिमाग। क्योंकि दिमाग में जो आप रखेंगे ना उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर दिमाग में अच्छी चीज़ रखेंगे ना तो अच्छी चीज़, ये दिमाग एक मेमोरी होता है। अगर आप जिस मेमोरी में जितना चीज़ रहता है वो परफेक्ट रखिए। क्योंकि जब उसमें एक्स्ट्रा आप डालने की कोशिश करेंगे कुछ ना, तो क्या है कि मेमोरी फुल दिखाएगा। तो जब आपके पास मेमोरी फुल है, बुराई से मेमोरी फुल है, तो अच्छाई कहाँ से आएगी? बचपन से लेके आज तक तूने तो बुराई ही बुराई देखी, तो बचपन के बाद जब अच्छाई करने की कोशिश करोगे तो कहाँ से आएगा? क्योंकि मेमोरी फुल है। पहले मेमोरी को डिलीट तो करो मेरे भाई। पहले मेमोरी जो है तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है उसको साफ़ तो करो, उसके बाद में अच्छी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो
बुराई करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बुराई मत करिए मेरे भाई। आज की डेट में अगर आप बुराई करते हैं तो आपसे, हाँ ये बात है कि आज के डेट में मैं ये बोलने जा रहा था कि आज के डेट में बुराई करनी गलत बात है, लेकिन मैं अधिकांश यही देख रहा हूँ कि हमारे गांव समाज में, जो हमारे देश में ये चल रहा है कि हर बुराई पर ही हर एक चीज़ टिका हुआ है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में ये होता है कि जब आप किसी का चापलूसी करेंगे, आपको बढ़ा चढ़ा के अगर उसकी तारीफ़ करेंगे ना तो बहुत खुश होगा कि हाँ मेरी तो तारीफ़ हो रही है, वाह क्या बात है। लेकिन आपको बता दें, तारीफ़ को अपने आप को ना तारीफ़ मत समझिए, क्योंकि उसको जब वो तारीफ़ आपका कर रहा है तो उसके पीछे उसका राज देखिए कि वो कहना क्या चाहता है और करवाना क्या चाहता है। मुझसे इसका कोई ज़रूर काम होगा, इसलिए ये मेरा तारीफ़ कर रहा है। क्योंकि कोई इंसान आज के डेट में ना, कलयुग में कोई खाली नहीं है जो कि तुम्हारा फालतू में आके तुम्हारा तारीफ़ करे। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है, हर कोई व्यक्ति अपने मतलब से जुड़ा रहता है आपसे। अगर आप किसी को आप देखिए, आज की डेट में कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई किसी को आप कहते हैं कि हाँ ये हमारा दोस्त है, ये हमारा फलाना है, ढिमका है, कुछ भी आप बोलते हैं उसको कि हमारा ये रिलेशन का है, तो मैं आपको बता दूं कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। मेन मौके पर कोई काम नहीं आएगा। अगर आता है, काम में आता है तो केवल आपका परिवार आता है। अगर आप मुसीबत में हैं तो अब किसी भी दोस्त काम नहीं आएंगे, किसी भी यार रिश्तेदार कोई भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उस परिवार को आपके साथ चलना है, उस परिवार का आप हौसला हैं। और यही परिवार आपको एक मंजिल की ओर लेके गया था, लेकिन आपने भटक गया, और वहाँ से आपका दिमाग खुलता है, और उसके बाद जब आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपकी समय ख़त्म हो चुकी होती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं यही बताना चाहता हूँ कि समय ख़त्म होने से पहले आप अपने दिमाग को कंट्रोल करिए और अपने आप को समझाइए कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं खुद अपने ऊपर खड़ा रहूँगा और मैं खुद कुछ करके दिखाऊँगा। ये हौसला रखो अपने अंदर, क्योंकि और ये हौसला अगर तुम्हारे अंदर हो गई तो किसी के औकात नहीं है तुम्हें कोई नीचे गिरा सके। क्योंकि हर कोई तुम्हें कुछ भी बोलता हो, सुनता हो, आप सुन के खुश रहिए। हमेशा लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर खुश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ज़रूर है आपके दिमाग में। और ये बात मैंने बहुत पहले भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। उसको देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में हमारे। और अगर ये बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि जान सकते हैं, आज मेरा टॉपिक है जलन की भावना। जलन की भावना किसी के अंदर पैदाइश नहीं होती है। अगर जब पैदा होता है तो उसके अंदर जलन नहीं होती है, लेकिन पैदा होने के बाद जलन उसके अंदर आ जाती है, इसलिए कि उस दूसरे की तरक्की देखता है तब उसको जलन हो जाती है। लेकिन दूसरे का तरक्की देखने से जलन नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा मेहनत किया, इसलिए वो इतना मेहनत करने के बाद वो आगे बढ़ रहा है। तुम्हें जलन किस बात की हो रही है? अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे जलन हो रही है, तो आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़िए। आप अगर किसी के देखने रहने से जलन नहीं आनी चाहिए। अगर जलन आती है तो उसको आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए, और आप भी सोचिए कि हम भी मेहनत करें और वैसा करें कि हमें जलन ना हो। क्योंकि जलन, देखिए, जलन एक बहुत बेकार चीज़ होती है, ये एकदम खतरनाक चीज़ होती है, बहुत डेंजरस चीज़ होती है। अगर तुम्हारे अंदर जलन की भावना आ जाए ना, तो तुम्हारा माइंड जो है ना वो घूम जाता है, और तुम हमेशा निगेटिव सोचने लगते हो, और हमेशा उसके विपरीत सोचते हो, और अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हो। क्योंकि जलन की भावना किसी के अंदर नहीं हो चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ाइए, और उसको साहस दीजिए, हाँ भाई तुम ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे गांव समाज में हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं तो हमें देखकर दूसरा जलता है, लेकिन वो जो तरक्की कर रहा है ना वो जलता नहीं है तुमसे, वो तुम्हें देख कर ना कि तुम्हें उसको और खुशी मिलती है, और आगे और तेजी से बढ़ता है। क्योंकि तुम इसलिए पीछे रह जाते हो, उसको देखकर तुम हमेशा उसको गिराने की कोशिश करते हो, और वो हमेशा तुम्हें देखकर वो आगे बढ़ना कोशिश करता है, इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। और जलन करने वाले हमेशा गिरते चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और अंततः वो गिर जाते हैं नीचे, एकदम कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो हमेशा जो तरक्की करने की कोशिश करता है ना, वही सबसे आगे बढ़ता है। अगर तरक्की करने की कोशिश करो ना तो वही सबसे आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ होती है कि हमें कुछ करना है, लेकिन जो दूसरे को विपरीत देखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि उसके अंदर ना, जैसे कि
अजीब ढंग की फीलिंग होती है कि भाई मैंने, क्योंकि भाई देखो अगर कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ रहा है ना, अगर कोई भी आदमी अगर मेहनत करके वो आगे बढ़ रहा है ना, तो पहले आपके जैसा ही था, ये नहीं कि वो डायरेक्ट आपसे ऊपर चला गया। पहले जैसे ही आप ही के जैसे था, वो भी पहले आपका ही जो है काम, जैसे आप हैं नॉर्मल, वैसे ही वो भी नॉर्मल था, लेकिन वो मेहनत किया। जब तुम सोए थे ना तब वो जाग रहा था, जब तुम सोए थे तब वो जाग रहा था, और जब तुम उठते हो ना तब वो सोता है। क्योंकि तुम अगर देखोगे ना, अगर सब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं होता है भाई, और अमीर कोई नहीं होता है, सब एक जैसे ही होते हैं। आए हैं ज़मीन पर आए हैं तो भाई भगवान ने भेजा है कुछ करने के लिए, तो कुछ कर लो। कि क्यों दूसरे को दोष दे रहे हो कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं पीछे रह गया, इसलिए वो आगे। अरे भाई गरीब हो, ठीक है, मान लिया मैंने तुमको गरीब हो, लेकिन गरीब हो तो उसको गरीबी मत दिखाइए ना। क्यों गरीबी दिखा रहे हो? उसको तुम कोशिश करो कि मैं भी उससे भी आगे बढ़ूँ। हर किसी का ये नहीं होता है कि वो मोटिव नहीं होता है कि वो यहाँ पे आने के बाद ही वो अमीर बन के ही वो आया हो। हर कोई अमीर बन के नहीं आया है, हर कोई गरीब ही था, लेकिन उसको अमीर कैसे बना? वो मेहनत किया, उतना मेहनत किया कि वो उतना वहाँ तक पहुँचा। और आप भी पहुँच सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं पहुँच सकते हो, आप भी पहुँच सकते हो। आपके पास वो हौसला है, लेकिन आप लोग अपने हौसले को ना निगेटिव वे में ले चले जाते हैं, पॉजिटिव नहीं लाते हैं, उसको हमेशा उल्टा विपरीत दिशा में ले जाते हैं। जब विपरीत दिशा में आपकी दिमाग और आपकी मन जो भटक गया ना, तो आप उसको फिर पॉजिटिव वे में, मतलब सही दिशा में लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उससे दुगना मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपने निगेटिव सोच रहे थे उस टाइम अगर आप मेहनत किए होते ना, जब आप गलत दिशा में जा रहे थे ना, अगर उस टाइम आप मेहनत किए होते ना, तो आपको ऐसी स्थिति नहीं आती कि आप ऐसी स्थिति में आप ऐसे काम करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का ना, जब किसी भी चीज़ को अगर आप बचपन से उसको ऐसा सिखाओ ना कि वो बवाल हो जाए, वो मतलब कि ऐसा उसको कोई भी एक प्रकार से किसी भी चीज़ को ले लो, अगर तुमने उसको सिखाया, कुछ भी अगर अच्छे से समझाया ना, तो बचपन से उसको पालो पोसो और जैसे कहोगे वैसे ही करेगा। एक मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुत्ते को ही देख लीजिए। अगर कुत्ते को आप बचपन से उसको अपने पास रखो, पालो पोसो, उसको बाद उसको खिलाओ पिलाओ, जो भी करना है उसको बचपन से सिखाओ ना, तो एक ट्रेंड डॉग हो जाता है वो, और वो जैसे आप कहेंगे वैसे ही करता है। तो मेरे भाई, अगर आप अपने दिमाग को जो बेसिक से ही अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से समझाइए और अच्छे से उसको यूज करिए ना, तो बहुत आगे ले जाता है। और लेकिन वही चीज़ अगर आप सोचें कि हम डायरेक्ट जंप करके चले जाएं, तो भाई जंप करने से क्या है कि एग्जांपल ले लो, कोई सीढ़ी है, सीढ़ी को आप सोचिए कि हम 2 सीढ़ी जंप करके चढ़ जाएं ऊपर, लेकिन 2 सीढ़ी क्या हुआ, आप जंप किए, ठीक है जंप किए, लेकिन डाक गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं डाके तो सीधा नीचे आ जाएंगे, गिरेंगे तो चोट लगेगा तो उससे भी पीछे जाएंगे। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट पाने की कोशिश मत करिए, मेहनत करिए, उसके बाद आपको नहीं मिलता है, नहीं हासिल होता है, तो प्रयास कर सकते हैं जंप करने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं एक एक सीढ़ी एक एक कदम करके आगे बढ़ के जा सकता हूं, हमारे पास समय है, तो उसको वैसा करिए। हाँ, आपके पास समय नहीं है, तब आप उस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं कि मैं जंप करूं, मैं थोड़ा सा प्रयास करूं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसा करूं कि पा सकता हूं, उस चीज़ को पा सकता हूं। क्योंकि अगर हर कोई अगर ये चाहे कि मैं ये चीज़ नहीं पाऊं, अगर वो चीज़ सोच ले कि मुझे ये नहीं पा पाऊँगा, तो नहीं पा सकता है, क्योंकि उसके थिंकिंग में बैठ चुका है, उसके दिमाग में बैठ चुका है कि मैं वो चीज़ नहीं पा सकता। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सोचने की। अगर आपके पास सोचने की सेंस की जो नर्व सेल होता है ना, वो जो होता है, वो जो दिमाग का जो नस होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वो आपको अगर हमेशा वो देखेंगे, अगर प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं आप। उसको एक बार ध्यान से सोचिए, एकदम मन अपना आंख बंद करके एकदम शांत दिमाग से सोचिए, तब देखिए वो कितना तेज काम करता है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, हम हो या आप हो, अगर है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं, और भगवान रहेंगे कहाँ से
भगवान रहेंगे कहाँ से? भगवान के तो हम लोग मार चुके हैं, क्योंकि झूठे कसमें खा के मार दिए हैं। कहेंगे कि भगवान है, भगवान कसम मैं ये नहीं बोला था। अरे भगवान की कसम खा गए। कसम खाने की मतलब क्या होता है? क्रिया खाने की मतलब क्या होता है? कसम खाने का मतलब ये होता है कि अगर वो गलत बात है, अगर तुमने उसका कसम खा गया तो वो मर जाता है। तो भाई भगवान का झूठी कसम खाने वाले भगवान को तो मार चुके हैं, तो बताइए फिर भगवान रह कहाँ से गए हैं? और बाद में यही कहेंगे कि मैंने भगवान को माना लेकिन भगवान ने नहीं दिया। अरे भगवान जब जिंदा रहेंगे तब तो तुम्हें देखेंगे, वो तो जिंदा ही नहीं है तो देखेंगे कहाँ से? तो भाई वो बातें अलग हैं, उसकी बात छोड़िए। जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं कि हमारे जो विचार है, जो मन है, जो धारा, मन की धाराएं हैं, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको कंट्रोल करिए अपने आप को, और किसी को देखकर उत्सुक और अपने आप को ग्लानि मत फील करिए। हाँ, ये आप सोचिए कि मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, वो अपनी जगह पे ठीक है। किसी को देख को आप बुराई मत करिए, किसी का देख के आप वो काम मत करिए जो तुम आपसे नहीं होता है और आप करना चाहते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि मैं प्रयास, अथक प्रयास कर सकते हैं, और उसके बाद उसका प्रयास जो है आप भी अपने अंदर ला सकते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ, हौसला बना सकते हैं, और हो सकता है उससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। लेकिन ये मत कहिए कि अगला आदमी को आप, वो चढ़ रहा है तो उसका टांग पकड़ के आप खींच दें पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ मत खींचिए, क्योंकि क्या पता पीछे के खींचने के चक्कर में आप उससे पहले आप सरक जाएं, उसके पहले आप गिर जाएं। इसलिए किसी को गिराने की कोशिश मत करिए। अगर गिराने की कोशिश करेंगे तो आप भी गिर सकते हैं, और उससे ज़्यादा घाटा आपका होगा, क्योंकि वो उतना ऊंचाई पहुंच चुका है। अगर नहीं गिरा तो उससे भी ऊंचा चला जाएगा, और वो गिरा भी तो भी कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि उसके पास उतना क्षमता है और आपके पास कुछ नहीं क्षमता है। अगर आप उसको गिराने की कोशिश करेंगे, आप अगर 1 देंगे तो 2 देगा, तो आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। कि अगर आप किसी भी चीज़ में, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आप लोग इतना दिमाग तो है ही, इतना आपके पास सेंस है कि जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वो मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये यूट्यूब के जो है वो अलाउ नहीं करता है कि ऐसी बात आप बोलें कि जिससे किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, या फिर किसी के दिल को ठोस पहुँचे। इसलिए मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ, मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं। और मेरी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो थिंकिंग है उनका, वो थिंकिंग जो सोचते हैं, समझते हैं, वो बहुत ही घटिया किस्म की होती है। और उस घटिया किस्म को ना, थिंकिंग को ना अपनी चेंज करिए, क्योंकि हमारे देश में ना थिंकिंग को चेंज करने की बहुत प्रयास करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो है समस्या चल रही है केवल सोच को लेकर। अगर सोच हमारी सही हो जाए ना तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है, हमारा गांव समाज बहुत आगे जा सकता है। और हमारे गांव समाज में यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे दिल में, जो हमारी सोच है, हम हर किसी को गिराने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज चाह जाए ना, गिराने की कोशिश ना करें, और हम सोचें कि हम उसको अपने जैसे, हम उसको भी साथ ले चले ना, अगर साथ चले ना, तो हमारे देश में ना बहुत तरक्की होगी, हमारे गांव समाज में बहुत तरक्की होगी। और हमारा ही नहीं, हमारा पूरा गांव समाज, हमारा पूरा परिवार, हमारा सब कुछ, सब खुश हैं। क्योंकि हम एक बचपन में पढ़ाई करते हैं तो उस समय हमें यही सिखाया जाता है कि हम साथ रहें। अगर आप शपथ लेते हैं तो वहाँ पे आपको स्कूल में शपथ दिया जाता है कि हम सब भाई बहन हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, हम सबका इनका आदर करेंगे, बच्चे का ही आदर करेंगे। क्योंकि यही चीज़ सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ हम नहीं सीखते हैं। अंततः बाद में आके हम यही कहते हैं कि उसका जस्ट उल्टा हम लोग सीख लेते हैं, और वही चीज़ हम लोग नहीं सीख पाते हैं। यही चीज़ हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं, हमेशा निगेटिव सोचते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में वो नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि हम उसके बात को ध्यान नहीं देते हैं। वो चीज़ हमें बार बार रटाया जाता है। हर चीज़ को, ये भी समस्याएँ हैं कि हर चीज़ को अगर रटाया जाए ना तो उसको वो याद नहीं रहता है। अगर आपको जो आपको एक्टिविटी जो आपको रियल दिखा के किया जाए ना, उसको आप ध्यान में रख लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। और एक बात ये भी बोल दूं कि जो है पॉजिटिव चीज़ ना, जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो जल्दी दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन अगर गलत चीज़ है ना तुरंत दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि ये मानव की, ये जो इंसान की ये जो मानव होता है ना, ये उनके दिमाग का ना बहुत गंदी सोच है कि अच्छी बात दिमाग में नहीं रखते हैं, बुरी बात दिमाग में रख लेते हैं। क्योंकि ये दिमाग जो है ना बहुत
बहुत डिस्टर्ब रहता है। और ये बहुत ख़राब चीज़ है दिमाग, क्योंकि दिमाग में जो आप रखेंगे ना उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर दिमाग में अच्छी चीज़ रखेंगे ना तो अच्छी चीज़, ये दिमाग एक मेमोरी होता है। अगर आप जिस मेमोरी में जितना चीज़ रहता है वो परफेक्ट रखिए, क्योंकि जब उसमें एक्स्ट्रा आप डालने की कोशिश करेंगे कुछ ना, तो क्या है कि मेमोरी फुल दिखाएगा। तो जब आपके पास मेमोरी फुल है, बुराई से मेमोरी फुल है, तो अच्छाई कहाँ से आएगी? बचपन से लेके आज तक तूने तो बुराई ही बुराई देखी, तो बचपन के बाद जब अच्छाई करने की कोशिश करोगे तो कहाँ से आएगा? क्योंकि मेमोरी फुल है। पहले मेमोरी को डिलीट तो करो मेरे भाई, पहले मेमोरी जो है तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है उसको साफ़ तो करो, उसके बाद तो अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो बुराई करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बुराई मत करिए मेरे भाई। आज की डेट में अगर आप बुराई करते हैं तो आपसे, हाँ ये बात है कि आज के डेट में मैं ये बोलने जा रहा था कि आज के डेट में बुराई करनी गलत बात है, लेकिन मैं अधिकांश यही देख रहा हूँ कि हमारे गांव समाज में, जो हमारे देश में ये चल रहा है कि हर बुराई पर ही है, हर एक चीज़ टिका हुआ है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये होता है कि जब आप किसी का चापलूसी करेंगे, आप किसी को चापलूसी करेंगे, आपको बढ़ा चढ़ा के अगर उसकी तारीफ़ करेंगे ना तो बहुत खुश होगा कि हाँ मेरी तो तारीफ़ हो रही है, वाह क्या बात है। लेकिन आपको बता दें, तारीफ़ हो ना, तारीफ़ को अपने आप को ना तारीफ़ मत समझिए, क्योंकि उसको जब वो तारीफ़ आपका कर रहा है तो उसके पीछे उसका राज देखिए कि वो कहना क्या चाहता है और करवाना क्या चाहता है। मुझसे इसका कोई ज़रूर काम होगा, इसलिए ये मेरा तारीफ़ कर रहा है। क्योंकि कोई इंसान आज के डेट में ना, कलयुग में कोई खाली नहीं है जो कि तुम्हारा फालतू में आके तुम्हारा तारीफ़ करे। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है, हर कोई व्यक्ति अपने मतलब से जुड़ा रहता है आपसे। अगर आप किसी को आप देखिए, आज की डेट में कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई किसी को आप कहते हैं कि हाँ ये हमारा दोस्त है, ये हमारा फलाना है, ढिमका है, कुछ भी आप बोलते हैं उसको कि हमारा ये रिलेशन का है, तो मैं आपको बता दूं कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। मेन मौके पर कोई काम नहीं आएगा। अगर आता है, काम में आता है तो केवल आपका परिवार आता है। अगर आप मुसीबत में हैं तो अब किसी भी दोस्त काम नहीं आएंगे, किसी भी यार रिश्तेदार कोई भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि उस परिवार को आपके साथ चलना है, उस परिवार का आप हौसला हैं, और यही परिवार आपको एक मंजिल की ओर लेके गया था, लेकिन आपने भटक गया। और वहाँ से आपका दिमाग खुलता है, और उसके बाद जब आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपकी समय ख़त्म हो चुकी होती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं यही बताना चाहता हूँ कि समय ख़त्म होने से पहले आप अपने दिमाग को कंट्रोल करिए और अपने आप को समझाइए कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं खुद अपने ऊपर खड़ा रहूँगा और मैं खुद कुछ करके दिखाऊँगा। ये हौसला रखो अपने अंदर, क्योंकि और ये हौसला अगर तुम्हारे अंदर हो गई तो किसी के औकात नहीं है तुम्हें कोई नीचे गिरा सके। क्योंकि हर कोई तुम्हें कुछ भी बोलता हो, सुनता हो, आप सुन के खुश रहिए। हमेशा लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर खुश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ज़रूर है आपके दिमाग में। और ये बात मैंने बहुत पहले भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। उसको देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में हमारे। और अगर ये बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी पहुँच सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे टॉपिक पे चलते हैं कि जो एक गरीब बहुत ही कष्टदायी में रहता है, और उसके बाद एक अमीर देखिए तो एकदम शान और शौकत से जीता है। तो भाई, हम हर एक इंसान को ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गरीब गरीब ही रह जाए और अमीर उससे भी ज़्यादा अमीर हो जाए। क्योंकि हर किसी के पास हर एक चीज़ की अथॉरिटी होती है, हर चीज़ की उसके पास अथॉरिटी रहती है, हर चीज़ की उसके पास अपना होता है, जो कि वो कुछ भी कर सकता है। अपना राइट्स रहता है, अपना अथवा रहता है, अपना हर एक चीज़ अपना रहता है, अपना संविधान रहता है, अपना हर एक चीज़ रहता है, जो कि वो कोई कुछ भी कर सकता है। और किसी को ये नहीं रहता है कि आप अमीर हैं तो आप नहीं करेंगे, आप गरीब हैं तो आप नहीं करेंगे। जो अमीर खा सकता है, जो अमीर पहन सकता है, जो अमीर कर सकता है, वो तुम भी कर सकते हो। एक इंसानियत के नाते बता रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ। क्योंकि कोई आज के डेट में कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता है, हर कोई एक बराबर होता है। समाज में अगर आप चलते हैं तो समाज में हर किसी को एक बराबर देखा जाता है। और हाँ, कलयुग है भाई, कलयुग में आपको
तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें मिलेंगी सुनने को, तरह तरह के अशब्द बातें सुनने को मिलेगी। ये नहीं है कि एक अमीर को कभी सुनने को नहीं मिलता है, वो आराम से रहता है, और एक गरीब को बहुत सुनने को मिलता है, वो गरीब को हमेशा सताया जाता है। ऐसी बात नहीं है, अमीर को भी सताया जाता है, अमीर के पास भी वो समस्याएं आती हैं। हर कोई अमीर जो है, अमीर अपने से नहीं बनता है, अमीर उसको बनने की मजबूरी हो जाती है उसको बनना, क्योंकि वो भी एक गरीब ही था, वो भी एक परेशानी में था, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ तक जा सकता था। लेकिन उसके पास जो हिम्मत, जो दिमाग और जो उसके दिल में जो बैठ गया कि मैं भी ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ। अगर कोई भी अमीर हो या गरीब हो, अगर वो चाहे कि मैं ये कर लूँ तो कर सकता है। ये नहीं, हर एक इंसान के अंदर वो हौसला होती है, वो चीज़ होती है जो कि वो उभार नहीं पाता है। और अगर वो चीज़ वो जान जाए, अगर वही चीज़ अगर वो उभार देना, अगर वही चीज़ उसके मन से बाहर आ जाए ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता। क्योंकि हर कोई इंसान जो है पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन उसके पास वो थिंकिंग एक बराबर नहीं होती। ये कहा गया है ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो पांचों उंगलियां सच में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का ये तेरा मेरा, जैसे छोटा बड़ा, हर उंगली का छोटा थोड़ा बहुत छोटा रहता है, छोटा बड़ा रहता है। लेकिन क्या है कि वैसे ही सेम कंडीशन में किसी के पास एक बराबर ज्ञान नहीं रहता है। हर एक इंसान की एक जैसी दिमाग नहीं होती है। हाँ, दिमाग चेंज रहता है भाई, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, जो कि वो अपने विचार से जो समझ सकता है, जो बोल सकता है, जो कर सकता है वो करता है, और वो जितना सोच सकता है उतना वो करता है। ये नहीं कि हर इंसान मेहनत करता है, ये नहीं कि हर इंसान, कोई कम मेहनत करता है तो कोई कम मेहनत करता है, कम ऊंचाई पर जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। तो और जो नहीं करता है, जो आलसी होते हैं, तो भाई उसकी कोई कहने की बात ही नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, अगर वो मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है। जब मेहनत नहीं करोगे भाई तो फल तो तुम्हें मिलेगा नहीं। क्योंकि किसी का भी कोई भी समस्या हो, अगर जब तक आप उसको हल नहीं निकालेंगे तब तक वो समस्या सुलझेगा नहीं। तो यही एक ज़िंदगी का यही एक मकसद होता है कि तुम किसी भी समस्या, तुम्हारे देखो ज़िंदगी में अगर तुम पृथ्वी पे आए हो तो भाई ये मृत्यु लोक है, मरना तो तय है। ये तो है नहीं कि तुम यहाँ पे आजीवन अमर हो, तुम जिंदा हमेशा नहीं रह सकते, एक दिन न एक दिन तुम्हें भी जाना है। तो भाई आए हो तो खुशी खुशी रहो, और साथ में सबको लेके चलो, और उसके बाद गांव समाज को, देश को अपने देखते हुए नागरिकों को जैसे हैं उनके साथ चलिए, उनके विचारधाराएं समझिए, और कुछ ऐसा करिए कि आपका भी नाम हो। अगर आप ना रहें, हो सकता है आपका दूसरा जन्म है तो भी आपके नाम से हो सकता है आप अगले जन्म में दूसरा कुछ हो। तो भाई वो बात की बात है, और मतलब कि ऐसा करिए कि आपका नाम हमेशा बना रहे। और देखिए, नाम ये नहीं होता है कि नाम को हम गिराते हैं। नाम देखिए, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे ना तब नाम बनता है। नाम तो वैसे भी आपका बना रहेगा, क्योंकि आपके नाम के आगे आपके पिता का नाम होता है। पहले आप बचपन में रहे होंगे तो आपके पिता के नाम से आपको जाना जाता है। लेकिन आप सोचिए, अपने दिमाग को सोचिए, और अपने दिमाग से ये पूछिए कि काश हम क्या करें, हम कैसे करें, कुछ ऐसा करें कि हमारे नाम के साथ पापा का भी नाम जुड़े। जगह मेरा नाम, अगर पापा कहीं जाते हैं तो ये हो कि इनका बेटा है, या फिर इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी, जैसे कि कोई मेरा नाम राम है तो ऐसा मैं ऐसा काम करूं, मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरे पिताजी जा रहे हैं तो ये हो कि राम के पिताजी जा रहे हैं। ये ना हो कि उनके मतलब कि राम के पापा हैं, ऐसे कोई बुलाए। ये ना कि पापा के नाम से मुझे जाने। ऐसा कुछ करने की विचार अपने दिमाग में रखिए, और कुछ ऐसा करिए कि आपको कोई परख ना पाए, और आप इतना शातिर दिमाग बनिए कि आपको कोई समझ भी ना पाए कि आप किस क्वालिटी के हैं। क्वालिटी आपका हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी आप लग्जरी कार, कितना भी आप अमीर हो जाएं, लेकिन कभी भी अपने पिछले ज़िंदगी का मत भूलिए। पीछे जो बीत गया उसको मत भूलिए। अगर पीछे जो भूल गया वो समझ लिए कि दुनिया से टूट गया, और दुनिया से टूट गया तो समझ लीजिए गांव समाज में उसका कोई इज्जत नहीं रह गया। अगर इज्जत बचानी है, इज्जत रखनी है, तो भाई गांव समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, और अपने परिवार को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, जब तक तुम्हारे पास शान शौकत
जो इज्जत है तब तक तुम्हारा हर कोई इज्जत करता है। अगर आपके पास आज की आज अगर आपके पास इज्जत चली गए, हाँ, और एक और शब्द मैं बता दूं, गलत करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी इज्जत और समाज में आपकी इज्जत, शान और शौकत, आपके पिता का नाम, आपके परिवार का नाम खराब हो। ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि ऐसा गलती करने की वजह से आपके परिवार पे बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जो कि परिवार बहुत टूट जाता है। और उस परिवार को ऐसा झटका देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा झटका देंगे तो समझ लीजिए कि आपका परिवार बहुत दुखी मन से आपको देखेगा और आप उस परिवार के सदस्य रहकर आप टूट जाएंगे और आपके नज़र में वो गिर जाएंगे, उनके नज़र में कि तुम बेकार हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार तुम्हें गलत नज़र से देखे, गलत तरीके से देखे कि तुम फालतू हो। ऐसा कोई सोच, ऐसे तो कोई परिवार अपने परिवार को सोचता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ऐसा हो सकता है अगर आप गलत करेंगे तो। अगर आप सही हैं तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, गांव समाज भी नहीं बोल सकता है, और आप जहां खड़ा होंगे वहां आपका इज्जत होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम इज्जतदार बने तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अगर वैसे चलना है तो भेड़ों की तरह चलते रहिए, जैसे सब चलते हैं वैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम सोचते हैं कि हम कहीं भी जाएं हमारी इज्जत रहे और हम खड़े हों तो हमारी नाम हो। तो भाई उसके लिए आपको अथाह प्रयास, अथाह परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी इज्जत, ऐसी मेहनत करने से इज्जत पाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि जो इज्जत मिलती है ना, वो मेहनत से तुम्हारी मिलती है। जब आप मेहनत करेंगे ना, देखो मैं एक और बात बता दूं, मेहनत का मतलब हमारा ये नहीं कि आप मेहनत करिए, मतलब आप अपनी शारीरिक बल से मेहनत नहीं मैं कर रहा हूँ। मेहनत का मतलब मेरा आप दिमाग लगाइए हर चीज़ से। मतलब मेहनत हमारा करने का मतलब कि शारीरिक बल केवल मेहनत नहीं होता है। मेहनत करने का मतलब कि आपका दिमाग का मेहनत और सेंसिटिविटी का मेहनत, आपके अंदर बॉडी का मेहनत, जो शरीर की बल है उसको भी ज़रूरी है। ये नहीं कि ज़रूरी वो नहीं है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि देखिए हर फील्ड में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो ऑलराउंडर है तभी आप सक्सेस हैं। अगर आप ऑलराउंडर नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि एक किसी के भरोसे पे आप खड़े हैं। इसलिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हर किसी को अपने आप को ऑलराउंडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपका ये नहीं देखेगा कि आप कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि अगर आप आज गिर जाते हैं तो खड़ा करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से उसका जुगाड़ बना के रखे हैं कि हम अपने सिस्टम के आधार पर हम अपना सामान रखे हैं, तो उसको आप किसी को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपके पास बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से खड़ा हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ गया, अगर आपके पास नहीं है तो भाई बात की बात है, क्योंकि हर कोई इंसान अकेला नहीं रहता है, उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर रहता है। इसलिए तुम्हारे साथ भी कोई होगा जो कि तुम्हारा सपोर्ट करेगा, और कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, क्योंकि कोई दुख में साथ देता है और कोई सुख में साथ देता है। और दिखावे के लोग जो हैं वो सुख में साथ देते हैं और दुख में भाग जाते हैं। तो ऐसे दोस्त, ऐसे परिवार, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि तुम्हारे सुख में काम ना आए, सुख में काम आए, दुख में काम ना आए। तो भाई दुख में काम आने से वही सच्चा होता है। सच्चा मित्र हो, चाहे सच्चा तुम्हारा अगल बगल के लोग हों, चाहे आपका रिश्तेदार हो, वही सच्चा होता है जो आपके दुख में काम देता है। अगर जो दुख में काम नहीं दिया तो मैं बता दूं उस सुख में भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। क्योंकि उनको भूल जाओ सुख में, क्योंकि वो तुम्हारे जो है, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो कि हर चीज़ में कोई एक कीड़ा रहता है जो किसी चीज़ को ख़राब करता है। तो वो वही कीड़े हैं जो तुम्हारे परिवार को और तुम्हें तोड़ रहे हैं। तो उनको, ऐसे कीड़ों को आप उसको अलग कर दो, उसको छटका दो, उसको मार डालो कि वो तुम्हें ख़राब ना कर सके। और तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वो तुम्हें भड़काते हैं, तुम्हारे उलझन में डाल देते हैं, तुम्हारी उल्टी सीधी बातें इधर से उधर करते हैं, तुम्हारे हर चीज़
ऐसे ऐसे काम करेंगे जो कि तुम उससे नफ़रत करने लगोगे, जो तुम्हारे अच्छे होते हैं, जिसको तुम अच्छे से जानते हो, जिसको तुम पहचान सकते हो कि हम उसको जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी समय आप अगर अपने परिवार से कभी भी अलग मत होना, क्योंकि परिवार ही आपका एक सच्चा मित्र होता है। मैं तो भरोसा करता हूँ तो केवल परिवार पे करता हूँ। आपको बता दूँ एक सच्चाई कि मैं भरोसा करता हूँ तो केवल परिवार पे करता हूँ और किसी के ऊपर नहीं करता हूँ, क्योंकि परिवार ही एक है जो मुसीबत में साथ देता है और बाकी कोई नहीं है जो कि तुम्हारा मुसीबत में साथ देगा। क्योंकि हर कोई इंसान तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। कि हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो ठीक, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं भाई। अपने तरीके से आपकी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को तो किसी की ज़िंदगी को हम बता नहीं सकते हैं कि वो करना क्या चाहता है, कर क्या सकता है। हो सकता है हमारी बातें से कुछ लोग को अच्छा लगे, कुछ लोग को ख़राब लगे, कुछ लोग को बुरा लगे, लेकिन कुछ लोग बहुत बेहतरीन कर जाएँ, ऐसी बात नहीं है। तो भाई बहुत लोग माइंड बताए ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी किसी का दिमाग अच्छा होता है, किसी किसी का ख़राब होता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो जिसको बुरा लगा हो उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ, और जिसको अच्छा लगा हो भाई उसके लिए थैंक्स हमारे जो इस वीडियो को देखने के लिए। क्योंकि हम कुछ बता रहे हैं तो उससे आपको कुछ सीख मिला, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि आप लोग को हमें कुछ वीडियो बनाने की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें भी खुशी मिला। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब बताने से आपको मोटिवेट हो रहे हैं आप, और उसके बाद हमारे बताने से आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं कितने लोग को मुझे ये बात, हमारी जो वीडियो है इससे आपको अच्छा लगा और कितने लोग को बुरा लगा। भाई बुरा लगने वाले को ही बता देंगे, क्योंकि उनसे मैं माफ़ी मांग लूँगा। अगर कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, मैं कुछ गलत बोला हूँ, हमें जितने वीडियो में मोटिवेशनल अपलोड किया हूँ, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी किसी को भी बुरा लगा हो, तो भाई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जितने लोग हैं भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोई कमी तो नहीं है हमारे आवाज़ में या फिर हमारे बातों पर। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बताएं ज़रूर, मैं इसको सुधार लूँगा, मैं अपने आप को और थोड़ा सा एक्टिव करूँगा कि मैं ऐसा शब्द ना बोलूँ जिससे आपको तकलीफ़ हो। क्योंकि आप ही लोग हम सब कैसे बने हैं, हम सब भाई परिवार हैं, हम सब जुड़े हुए हैं एक साथ, तो परिवार के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो भाई आप हैं तो हम भी हैं, हम भी आपके ही सदस्य हैं, आपके ही परिवार के हैं। तो हम भी आपके भाई ही हैं, आपके बेटे हैं। क्योंकि हम हैं तो यहीं के, आपके ही देश के हैं, आपके ही नागरिक हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी बातों को। तो जो भी गलती हुई हो, माता पिता भाई बहन जो भी हैं, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपसे गलती हुई है, मैं उसको सुधार लूँगा। और धन्यवाद दोस्तों।